So hello everyone, I'm Rohit Vats from News 18, and we are with the team of Girls Hostel Season 2. And so we will start with Shishti. Shishti, what do you think of your character? Like last season, we saw that it was more of fun, but this time the trailer suggests that there are going to be some issues also. I feel I'm very lucky that I have gotten to play this character, this amazing character. Her name is Anandi Joshi, जिसको जो बुलाते हैं. और इस सीजन में पहले सीजन में ऑफ कोर्स आपको थोड़ा बहुत जो के बारे में समझ में आता है कि वो कैसा सोचती है, क्या करती है, कैसी है, वो अपने में बहुत कंफर्टेबल है. बट इस बार वी आर एक्सप्लोरिंग layers of Joe which we didn't know existed. Actually, जब तक मैं भी सेकंड सीजन का स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, मैंने बोला अच्छा ये so there is a lot more to Joe in this season than there was in the previous one. वो इसको बिल्कुल स्पॉट में डाल दिया है, खड़ा कर दिया है कहीं भी. अब तुम करो जो कर सकती है, जो हीरो बन रही हो तुम, अब करके दिखाओ. तो उसको वल्नरेबल है. देन देयर आर लेयर्स, देयर इज फ्रेंडशिप एक्सप्लोर्ड to a level where I think Parul and I also we found something for Joe and Zaira इस season में. तो बहुत सारी चीजें explore की हैं in terms of relationships, friendships, stands, what you believe in terms of politics, in terms of what the world is going through. So there's too much happening and it's very, very exciting. And Ehsas, before the connection disconnected, so you were talking about how this was like a vacation for all you girls. Like this is the first time there is a show with so many girls in the lead roles, and even on OTT space, you guys like kind of have been dominating it for like 2-3 years now. The first season came in 2018, right? So it's been like almost 3 years, and you all are very known faces in the OTT space, especially on YouTube. So I think, in fact, if you will ask me, I think you guys are the biggest stars there. So how was this thing when this concept came? What was your first reaction? When season one came to me. Season one and then season two. When one came, मैं तो बहुत excited थी because again something like this I've never done, and Girls Hostel was my first proper web series. So मैं तो उस way में I was also very excited because it's a show, like a proper web series for YouTube, and I was very excited. And then again the story and Girls Hostel, and मैं कभी hostel में रही नहीं हूँ, तो मेरे लिए भी एक different experience था, और मैंने भी बहुत कुछ चीजें लर्न की है. मतलब मैंने बहुत सीखी हैं बहुत सी चीजें बिकॉज ऑफ द शो. तो मेरे लिए तो काफी एक्साइटिंग था. एंड ऑल्सो रिचा's character is very close to me because she is somewhere or the other very very similar to who Ehsas is. So मेरे लिए वो भी प्ले करना काफी एक्साइटिंग था, क्योंकि इन द फर्स्ट सीजन जैसे रिचा wants to be independent, she wants to explore, she has a few restrictions, और somewhere or the other मेरी लाइफ भी काफी वैसी है कि मैं भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, मैं भी इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, और मैं भी चीजें फिगर आउट कर रही थी उस समय. तो रिचा काफी क्लोज है, और हम दोनों की पर्सनालिटी और हम दोनों की वाइब काफी सेम है, रिचा और एहसास की. तो फिर मुझे वो भी प्ले करने में काफी मजा आया. सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड. एंड देन अगेन जब मैंने सेकंड सीजन का प्लॉट पढ़ा और मैंने स्क्रिप्ट्स पढ़ी और मुझे पता चला क्या हो रहा है, इट इज डेफिनेटली 10 times more intense, 10 times more dramatic and fun. And also in this season सबकी कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाई है, और थोड़ा और इंटीमेट लेवल पे इन सबकी जर्नी दिखाई है. इन सबका जो भी थॉट्स है, जो भी प्रायोरिटीज सारी कैरेक्टर्स की एक तरीके से सेट हुई है. तो आई थिंक आपको इस सीजन में वो भी देखने मिलेगा. और जैसे कि हम आई थिंक आई मेंट somebody mentioned before कि इस सीजन में मुद्दे काफी सही हैं. हम काफी सीरियस और काफी इंटेंस मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं. सो आई थिंक दिस टाइम इज गोना बी क्रेजी. And Parul, you were telling me about like how it's a show for the girls by the girls, So and they are fighting over girls. So you were explaining like the whole situation there. Yeah. So what I was saying was एहसास का as Richa season 1 की ending में एक dialogue है which kind of एक संक्षेप में बता देता है कि ये शो क्या है और हम किस बारे में बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स सीजन 1 में हमने सिर्फ एक, और आप कोई भी शो करते हैं, आप सीजन 1 में आप सिर्फ एस्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद एक्चुअल जर्नी तो अब शुरू हुई है.
और जब हमने किया भी था तब जैसे सृष्टि ने बोला कि पहले हम करते थे शूट और रिलीज हो जाता था, वो ऐसे था। इस बार हमने एक साथ शूट किया है, देयर वाज सो मच मोर प्रेप, देयर वाज सो मच मोर talking about the characters, हम क्या सोच रहे हैं, just collaborating with one another, working on little things. I think that was the beauty this season की। और जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार राम्या मंत्री और जाहिरा अली एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं, बट जो मुद्दा है वो बहुत, जैसे एहसास ने बोला कि बहुत कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो कि कभी हॉस्टल में जगह कम होना, हॉस्टल में पानी की कमी हो जाना, या फिर हॉस्टल में लड़कों का घुसाना, दीज आर वेरी सीरियस टॉपिक्स जो हम राइटर्स ने एक्चुअली, जो कि राइटर्स ने एड्रेस किया और हमने सिर्फ पोर्ट्रे किया है उसे। एंड या ये सेट बहुत ही अमेजिंग था। रोज सुबह मैं एक्साइटेड होती थी, रात को मैं कई बार इतनी एक्साइटेड होती थी नींद नहीं आती थी कि सुबह सेट पे जाना है। दिस वाज वन सेट, आई थिंक एवरीथिंग just came together. And Simran, in a way, you started the हाँ जी। story. Like you go to the college, and then things start happening and all that. So, when you start shooting for it, did you have any idea that this show is going to be this big? ओह नेवर, हम में से एक्चुअली किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शो इतना बड़ा बन जाएगा एंड लोग इतना पसंद करेंगे। इवन लाइक फॉर मी एक्चुअली, इफ आई टेल यू, दिस वाज द फर्स्ट वेब सीरीज एंड आई एम सो हैप्पी दैट ये फर्स्ट वेब सीरीज ही मेरी इतनी बड़ी बन गई। सो इवन फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो इट वाज लाइक बहुत काफी डिफरेंट लगा था। और मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मतलब इतने बड़े लेवल पे जाएगा। सोनी लिव तो दूर की बात है, कोई नेटफ्लिक्स या अमेज़न पे जाएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। आई वाज लाइक कि हाँ वेब सीरीज है, कुछ नया है, इट विल बी सो नाइस, यूट्यूब के लिए है, पीपल आर गोइंग टू वॉच इट एंड एवरीथिंग, वो मेरे दिमाग में था। बट कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े लेवल पे जाएगा। सो या नेवर एक्सपेक्टेड। Ehsas and Srishti, you guys have worked in big shows even on YouTube and like अभी तो मतलब 3-4 साल हो गया काम करते हुए, तो maybe more, and now people have started recognizing your faces, like आप लोग already established actor हो. So so what was your experience of suddenly Girls Hostel? Because you know a lot of similar shows are available on YouTube, but not many make it the cut. Like not many become so big. Always we stop because we're waiting for who bloody answers first. नहीं, मैं कह रही, अच्छा मैं बताती हूँ कि गर्ल्स हॉस्टल के देखो एहसास बचपन से काम कर रही है, वो अभी भी बचपन में है, उसके भी बचपन से काम कर रही है वो। सो शी हैज बीन वर्किंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years एंड एक्चुअली गर्ल्स हॉस्टल was ऑफ कोर्स पहला वीडियो था व्हाई शुड हॉट गर्ल्स हैव ऑल द फन, जो मल्लिका दुआ के साथ जो फट गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, बट गर्ल्स हॉस्टल वाज द पॉइंट वेयर इट बिकेम समथिंग एल्स। इट चेंज्ड इनटू a little more popularity, a little more appreciation, exactly, a proper appreciation। हाँ, और उसी बीच में गली बॉय आई थी। तो ये गर्ल्स हॉस्टल से मेरी जर्नी काइंड ऑफ टू वेयर आई वांट टू हेड, टू व्हाट आई एम एमिंग, कुछ गर्ल्स हॉस्टल से शुरू हुआ मेरे लिए। उसके बीच में गली बॉय आई, फिर गुलाबो सिताबो, फिर हमने सीजन 2। तो अभी मैं उस रास्ते पे हूँ जहाँ पे मुझे पहुंचना है। बट हाँ, मैं तो बहुत खुश हो गई थी। मुझे याद है गर्ल्स हॉस्टल जब रिलीज हुआ था तब मेरे 100K फॉलोअर्स, साले इन लोग के ऑलरेडी पता नहीं लाखों करोड़ों फॉलोअर हो चुके थे, तो मेरे पहली बार 100K हुए एंड आई वाज लाइक ओह यस। सो गर्ल्स हॉस्टल गेव मी दैट एंड जो वाज लव्ड बाय एवरीबॉडी। तो मेरे लिए जो शुरुआत गर्ल्स हॉस्टल से ही हुई है। And Ehsas, you? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी मतलब मेरे लिए तो डिजिटल वाज नेवर प्लान्ड। मेरा प्लान ही डिफरेंट था। मैं बीच में थोड़ा टीवी करती थी, फिर मैंने ब्रेक ले लिया था कंप्लीटली टीवी से, और फिर मैं फिल्में करना चाहती थी। तो और डिजिटल मेरे कभी प्लान में था ही नहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट भी किया तब डिजिटल खुद इतनी बड़ी चीज नहीं थी। लाइक OTT प्लेटफॉर्म वाजंट दैट बिग। तो फॉर मी तो इट वाज लाइक इट जस्ट हैपेंड, सो आई जस्ट गॉट लकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड माय वेब सीरीज ये सब तो होता ही रहता है, बस एक और हो गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मतलब है कि लाइक वेब सीरीज के लिए मेरा दिस माय फर्स्ट
web show ever. And like even Simran said that it's the first one, it was so huge. So I think I just got lucky and I'm very very grateful. तो कभी हमने कभी जैसे सृष्टि ने कहा था कि इतने व्यूज 18 लाख व्यूज आ गए थे हमारे पहले एपिसोड को, तो हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम सब तो ऐसे बना रहे थे कि चलो यूट्यूब का शो है, 3-4 मिलियन व्यूज आ जाएंगे, पर 18 मिलियन व्यू, लाख बोला मैंने, 18 मिलियन, हाँ सॉरी, 18 मिलियन व्यूज आए। 18 मिलियन कितने होते हैं? बहुत होते हैं ना। ओहो सोचो 1 करोड़ जब रियलाइज हुआ ओहो 1 करोड़ 80 लाख लोगों ने देखा हमारा शो। तो हम तो ऐसे हो गए थे, बौखला गए थे हम सब, सारे के सारे। तो we did not act, we had no idea कि इतना it will blow up this way. It was brilliant. Definitely, it's really big, and so with Sony Live, I think this should become even bigger. And Parul and Simran, I was just wondering that what would you guys do if you are caught up in a similar situation? In what situation? Like in a similar situation when you are in the college and suddenly there is a rival gang and you have to stand up for everything you believe in. So what would you do in such a situation? This is for both Parul and Simran. बताओ सिमरन। No, I am waiting for who's no, going to कर रही हैं। बोलो। That's it. तो गाइस एक चीज मैं इस पे बोलना चाहती हूँ कि सॉरी, मुझे बस एक थॉट है। आई एम डूइंग अ शो कॉल्ड चुहल, इट्स अ प्ले, और मैं और मानव कॉल जो है एक्टर, मैं हम लोग बात कर रहे थे और हम लोग कह रहे थे कि यार जो हम लोग स्क्रिप्ट में लिखते हैं और जो परफॉर्म करते हैं, वी आर सो ट्रू टू आवर कैरेक्टर्स। इफ ओनली वी कुड बी सो ट्रू टू आवरसेल्व्स व्हेन इन लाइफ, वी आर ब्लडी हिपोक्रिट्स इन लाइफ, यू नो। तो अब अगर मैं ये सिचुएशन में खुद को डालूं कि अगर राइवल गैंग है और मैं क्या करूंगी, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। बिकॉज अभी तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं सच्चाई को करूंगी, बट मुझे रेपरकशंस अगर जीवन के पता है कि क्या क्या हो सकता, आई विल बी स्कैर्ड। So in the series, it's easy. It's not easy. I mean, we are lucky we can do what we feel like, but in life, it's the hardest decision to make. Okay, I'm done. Thanks. This is all I wanted to say. No, सृष्टि ने बहुत अच्छे से बोला। Sorry, सृष्टि ने सबके बिहाफ पे बहुत अच्छे से सब नैरेट कर दिया। बहुत अच्छे से उसने आंसर कर दिया। हमें पता ही नहीं है हम क्या करेंगे। हम ये सोचेंगे हम बच जाएं। हम as human beings are so selfish ना, हमें ये रहेगा कि हमारा हो जाए, which अगर देखा जाए जो कैरेक्टर है, जाहिरा है या फिर रिचा है, हम चारों मिलके एक चीज के अगेंस्ट खड़े हुए हैं जो कि पूरे कॉलेज में कोई और नहीं हुआ। सिर्फ हम चारों खड़े हुए हैं डेंटल से कि हम ये करेंगे, एंड वी ऑल आर डूइंग इट टुगेदर, एंड देन देयर इज पलक व्हिच इज प्लेड बाय खुशबू। सो रियल लाइफ में आई थिंक हर कोई अपना सोचता है कि हम बच जाएं, हमारा सब हो जाए, सुविधाएं हो जाए, हम निकल जाएं बस। बट या आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू व्हाट जाहिरा इज डूइंग और व्हाट Millie is doing or Richa or Joe. Swag है जो में। नहीं, I think अगर मैं अगर वो सिचुएशन होती, मैं कंफ्यूज होती कि मैं क्या करूं, कि मैं सही करूं गलत करूं, मैं क्या करूं। ऑफ कोर्स नहीं, कंफ्यूजन वाला तो वो होता ही मेरा भी, इसलिए मैं वही सोच रही थी। मैंने इसीलिए टाइम लिया बोलने के लिए कि यार मैं क्या करती मैं इसीलिए सोचने लगी। बट एनीवे, Fair point. So before we end up, if you guys can describe your characters in one line or one word, if you want, like we will start with Parul. Oof, she is Zahra is very sassy. Simran? Millie is very naive. Okay. Yeah. Ehsas? I think funny and naive. Sorry, funny and naive. Yeah. मेरे ख्याल से Richa is definitely the girl next door, but not in the typical stereotype way. I mean, she's a girl next door who is very strong at the same time, who has very strong opinions, and who's working towards a better environment around her. So yeah. And Srishti?
Joe is fearless yet vulnerable. Very apt descriptions, guys. And so, on that note, I have used up most of my time. And thanks a lot for your time and all the best for your show. Thanks, Rohit. बहुत Thank मजा आया. you. Thank Thank you so much. you. Thank you.